The Election Commission of India is undertaking a special intensive revision of electoral rolls in Bihar, aiming to update voter information and ensure accurate representation. This process, crucial for fair elections, involves booth-level officers going door-to-door to collect and verify voter data. However, ground realities, as our correspondent Manish Kumar in North Bihar's Darbhanga and Madhubani districts found, reveal a mixed bag of experiences, challenges and some surprising deviations from the prescribed procedures. In ward number 21 of Darbhanga, we meet Manoj Kumar, a booth-level officer working tirelessly to upload data from over 1,000 assigned voters. Despite the immense workload and a tight deadline of July 25, Manoj remains optimistic. कितने वोटर को कवर किए? अभी हमें 1290 को कवर करना था। अभी तक मैंने 1010 का कवर किया हूँ। 200 बांट चुके हैं, एक जो बचा हुआ उसको बांट चुके हैं, सिर्फ उसे रिसीव लेना है। हर घर में एक वोटर पे एक फॉर्म है या दो फॉर्म है? 2 फॉर्म हैं, एक रिसीविंग के लिए है और एक ये लेना है, वापस लेना है। तो 2 फॉर्म आप बांट पाते हैं? जी, हाँ बांट पाते हैं, बांट देते हैं। थोड़ा समय लगता है लेकिन बांट देते हैं। अपलोड कितना किए? अपलोड जो है 800 के आसपास समथिंग हो गया है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं। वो आधार कार्ड तो दे देते हैं आसानी से। फील्ड में दिक्कत तो हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स लेने में दिक्कत हो रहा है, वो लोग नहीं दे पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। समय जो आप लोग को दिया गया है वो पर्याप्त है या नहीं? पर्याप्त नहीं है, बहुत कम समय है। बहुत कम समय में ये सब काम हो रहा है। 8 बजे निकलते हैं तो रात में 8 बजे तक हम लोग फील्ड में ही रहते हैं। बहुत टफ काम है। Most of the BLOs admitted that they are racing against time. Even though forms are being distributed, a significant challenge is that most voters do not have the prescribed 11 documents which have been made mandatory by the Election Commission. While it seems on the ground the BLOs are taking whatever documents are available, including Aadhaar numbers and voter ID numbers, it doesn't fully resolve the underlying issue of document availability for many of Bihar's poor and villages. डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास होता है या उसमें दिक्कत आती है? नहीं, डॉक्यूमेंट सबके पास है, कुछ ना कुछ है सबके पास। जितना आप 11 दिए हैं ना, 11 में से कुछ ना कुछ सबके पास है। 3 मेरे सदस्य का मतलब जैसे आधा वोटर लिस्ट में था, ऑलरेडी वहाँ से BLO के उनके थ्रू मिला था, वो फॉर्म भर के वो ले गए हैं। जिनका उसमें नहीं नाम है उनको ये फॉर्म दिया जाता है, जिसे भर के फ़ोटो चिपका के, आधार है तो आधार लगाइए, नहीं तो आधार का नंबर और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और पिता का नाम, माता का नाम और जीवन साथी का नाम, इतना नाम भर के आपको देना रहता है। At the core of this special intensive revision is that any person whose name is not recorded in the 2003 electoral rolls, an estimated 2.93 lakh people, needs to submit at least one of the 11 documents establishing eligibility to vote. The EC says the reasons behind the revision includes inclusion of names of foreign illegal immigrants, frequent migration, young citizens becoming eligible, and non-reporting of deaths. The list of 11 documents is indicative, not exhaustive. However, it is a challenge for people, especially in rural areas where official documentation is scarce. The list includes identity card, pension payment order issued to regular employee, pensioner of any central government, state government, PSU, any identity card, certificate, document issued in India by government, local authorities, banks, post office, LIC, PSU prior to 1st of July 1987. Birth certificate issued by the competent authority. Passport, matriculation or educational certificate issued by recognized boards or universities. Permanent resident certificate issued by competent state authority. Forest rights certificate. OBC, SC, ST or any caste certificate issued by the competent authority. National Register of Citizens not applicable to Bihar. Family Register prepared by state or local authorities. Any land or house allotment certificate by government. Not being able to furnish one of these documents could open another challenge. According to paragraph 5B of the EC's instructions, the official concerned could flag cases of suspected foreign nationals to the competent authority under the Citizenship Act. At the Darbhanga municipality, we met with residents who voiced their concerns that BLOs refuse to do mandatory door-to-door and instead call them to the polling stations. हम फिलहाल दरभंगा के एक मोहल्ले में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि निर्वाचन आयोग ने BLO को घर घर जाके सत्यापन करने के लिए बोला, पुनरीक्षण करने बोला है।
मैं यहाँ पर कई बार मैंने बीएलओ को फोन किया है कि इन लोगों को जो देखिए इसमें कितने उम्र दराज लोग हैं नहीं जा पाएंगे, वो कह रहा है कि नहीं वहां भेज दीजिए। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बीएलओ आखिर जो है इन लोगों को इनके पास पहुंच के इनका काम नहीं। दूसरी बात ये कि वार्ड पार्षद के चुनाव में जब ये काउंसलर चुनाव होता है इन सभी का बूथ यही है, मतलब लोकल बूथ पड़ता है। अभी एमएलए चुनाव होने वाला है, 3 लोगों का बूथ जो है वहां शिफ्ट हो गया है दूसरे वार्ड में। 20 वार्ड के ये लोग आप लोग का फॉर्म लिया है या नहीं लिया है? हाँ, नहीं दिया, वहाँ जाके भरे थे लेकिन फिर आज बोला है आने के लिए। क्यों? अब क्या पता, अब हमको तो नहीं मालूम है क्या है बोला है। देखिए करके क्या हुआ? हम लोग को फॉर्म नहीं मिला है। हाँ, क्यों? अब गए लाने के लिए अभी तक उन्हें बुला रहा है। फॉर्म कहाँ दिया है, लिख के ले गया है, दिया ही नहीं, बुलाया है, भीड़ बहुत है। फॉर्म देने के लिए क्या बोला? वहाँ बुला रहा है कि वहाँ आइए, हम लोग के पास टाइम नहीं है। अगर किसी का 55 बूथ है, 155 है और 55 में खोजते खोजते नहीं मिला तो 56 में जाना पड़ेगा, 54 में जाना पड़ेगा। हम लोग एकदम परेशान हो गए। क्या समय और होना चाहिए था? समय बढ़ना चाहिए था, समय बढ़ना चाहिए सर, इतना ही समय में नहीं होने वाला। Adding to the complexities, a BJP Mandal president was found sitting with polling officials, seemingly assisting them. Clearly embarrassed when caught on camera, she offered her justification. मेरे वार्ड में बहुत सारा मतलब है, हम लोग का किया गया कि यहाँ पे मतलब मोहल्ला से शिकायत हो रही है कि वहाँ पे नहीं आया जा रहा है, मतलब बीएलओ जो है नहीं पहुँच रही है, हम लोग का फॉर्म नहीं भरा रहा है। हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं, शाम में आते हैं, आज सुबह में रहते हैं तो सुबह में कोई पहुँच नहीं पाता 10 बजे से पहले, और शाम में नहीं ना कोई यहाँ पे आता है कि फॉर्म दे दे, हम भर के पहुँचा दिया जाएगा। मगर इन यहाँ पे कहना है बीएलओ साहब को कि मतलब यहाँ पे आके के फॉर्म भरे, मोहल्ला में नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत है कि पता ही नहीं चल रहा है कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। अब हम इनको बता रहे हैं कि एड्रेस सब लोग कह रहा है कि भाई नगर निगम में जाइए, और यहाँ आकर के पूछते हैं कि फॉर्म किसके पास मिलेगा, इन लोग कोई बता नहीं पा रहे हैं। कागज इधर उधर मत कीजिएगा, कुछ पूरा भैया नहीं है, खोजेंगे तब न मिलेगा। अगर कविता नाम से था, बबीता एक आदमी का नाम नहीं रहता, कितना आदमी का बबीता नाम रहता है। हम फिलहाल पटना के पास फुलवारी शरीफ इलाके में हैं। यहाँ पर ये कम्युनिटी सेंटर है, करीब यहाँ 5-6 मतदान केंद्र होता है, वोटिंग सेंटर, पोलिंग बूथ होगा, और यहाँ पर कई सारे बीएलओ एक साथ हैं। कुछ लोग जो हैं वो आवेदन लेकर भी हैं। आइए जानते हैं। एक चीज़ बताइए, अभी तक आप लोगों ने कितना फॉर्म जमा किया है और क्या इसमें रिस्पांस क्या है लोगों का? हमारे जो वोटर हैं लगभग 829 वोटर हैं, इसमें लगभग 600 के करीब पर्ची ये फॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अच्छा। और उसमें से अभी बहुत सारा फॉर्म आ गया है, अपलोड भी हो गया है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं मैक्सिमम है, और वो लोग डॉक्यूमेंट लगा ही के दे रहे हैं। दिक्कत क्या आ रही है जैसे कि जब लोग पब्लिक ले जाते हैं, लोग लौटाना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि 25 तक 26 तक डेट है, हम आपको क्यों दें? समय और होना चाहिए था। ये तो बहुत मुश्किल काम है सर, कि बहुत कम टाइम में। अभी भी देखिए 25 तारीख तक जब कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 25 तारीख तक करना है, जबकि हमारे एडीएम साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि आप जल्द से जल्द 2 दिन 3 दिन के अंदर कलेक्ट कीजिए और मैक्सिमम ले लीजिए। तो पब्लिक के पास चूँकि वो इन्फॉर्मेशन है कि 25 है, उनके दिमाग में 25 बैठा हुआ है। Even though Election Commission is claiming that it has already covered more than 90% of voters, but on the ground there are issues with the way this entire process is going on. And at the same time there is also apprehension in the mind of genuine voters, which needs to be addressed sooner than later. In Patna, this is Manish Kumar for Decoder.